جب میری ماں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو میں حیران رہ گئی۔ آج کل کے زمانے میں عمرہ کرنا بھی کون سا آسان تھا، لیکن بہت خوش تھی، اور جب وہاں پر پہنچی تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پر تھوڑی دیر بعد ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب میں بھی ان کے ساتھ اکیلی تھی، اس لیے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ماں تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب ہم نے وہی کرنا ہے جو کسی گناہ گار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ گناہ گار؟ میری ماں کہاں سے گناہ گار ہوئی؟ میری ماں تو ایک نیک شریف عورت ہے، اور میری ماں کی نیکی کے قصے تو پورے پاکستان میں پھیلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے اور کتنی حقیقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے میری ماں کے لیے ایک سزا سنا دی، اور وہ سزا بھی ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد، یعنی کہ ان کی میت کو سزا سنا دی گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری نیک اور پارسا ماں پر یہ لوگ اس قسم کا الزام لگا رہے تھے۔ ہر ان لوگوں کو آخر کیا تھا کہ ان کو وہ سب کس نے بتایا؟ میں تو تب حیران ہوئی جب انہوں نے اپنی سزا کو عملی جامع پہچان بنانے کی کوشش کی۔ مجھے کہا کہ آپ دور ہٹ جائے، نہیں تو ہم آپ کو بھی اس سزا میں شامل کر لیں گے۔ اور انہوں نے میری ماں کو سزا یہ دی کہ جب میری ماں مر گئی تو ان کے سارے میرا نام سونیا ہے، اور میری ماں کا نام فریدہ تھا، اور میری ماں اور میں اس دنیا میں بالکل اکیلے تھے۔ ویسے تو ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، لیکن سب کے اپنے اپنے پورشن تھے۔ ایک ہی بڑے گھر میں رہتے ہوئے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ جب میری ماں بیوہ ہوئی تو سب نے کہا کہ ہم لوگ ہیں نا، ہم سنبھالیں گے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ سب نے بھر کے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اس کے بعد کسی نے بھی ہماری خبر نہ لی۔ ہماری زندگی اس وقت بدلنے لگی جب گھر کے معاشی حالات بگڑ گئے۔ کوئی سہارا نہ تھا۔ ہر ماں نے سخت فیصلے کرنے شروع کیے۔ اس نے مردوں کو نہلانے کا کام شروع کیا، جو ہمارے خاندان کے لیے بالکل انوکھا تھا اور ناپسندیدہ قدم تھا۔ محلے اور خاندان والوں نے باتیں بنائی، تانے دیے، اور ہمیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ماں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں یہ نہ کروں تو پھر ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ نہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر اس کے پاس تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے اس نے سلائی اسکول کا انتظام کیا تاکہ وہ کچھ سیکھ لے اور اپنا حصہ ڈال سکے، لیکن میرے دل میں سلائی کے لیے کوئی شوق نہ تھا۔ ہر میری توجہ کہیں اور بھٹکتی رہی۔ آہستہ آہستہ ماں نے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی اور محلے کی عورتوں میں مشہور ہو گئی۔ جب بھی کسی عورت کی میت ہوتی، لوگ اسی کو بلاتے۔ وہ نہایت سکون اور وقار سے اپنا کام کرتی اور لوگ اس کی مہارت کی تعریف کرنے لگے، لیکن یہ تعریفیں ہمیں ان تانوں کا زخم نہیں بھلا سکتی تھی جو شروع میں برداشت کرنا پڑے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، تو کوئی بھی یہ فکر نہیں کرتا تھا کہ ہم نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی میری ماں نے میرے لیے نئے کپڑے بنانے شروع کیے یا میری ضروریات پوری کرنا شروع کی، سب کی نظریں ہم پر مرکوز ہو گئی۔ شروع میں یہ نظریں خاموش تھی، لیکن جلد ہی سوالات اٹھنے لگے۔ ہماری مالی حالت ابتدا میں بہت خراب تھی۔ ماں کا مردے نہلانے کا کام ایسا نہیں تھا کہ اس میں بہت زیادہ پیسے ملتے۔ ایک معمول سے رقم دی جاتی، اور وہ بھی کبھی کبھی، کیونکہ مرنے والے کے لواحقین پہلے ہی صدمے میں ہوتے، اور ماں یہ سمجھتی تھی کہ ان سے زیادہ پیسے لینا مناسب نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ لوگ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے شکریہ کے طور پر 2 کلو دال دے دی تھی، اور کسی نے 2 کلو مالٹ۔ اس وقت ماں کو یہ چیزیں بھی غنیمت لگتی تھی، لیکن ان پر ہمارے گھر کا خرچ نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے ایک میت کے غسل کے بعد گھر واپس آئی تو خالی ہاتھ تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر وہاں تھی، پھر بھی کچھ لے کر نہیں آئی؟ ماں نے کہا کہ بیٹا ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس وقت میری ماں کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک ہمت تھی جو مجھے حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اور جیسے جیسے ماں کا کام محلے میں مشہور ہوا، لوگوں نے اس کی مہارت کو سراہنا شروع کیا۔ اب ماں کو کام کے بدلے معقول رقم ملنے لگی، لیکن ماں نے مجھے سختی سے ہدایت دی کہ کسی کو نہ بتاؤں کہ ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں، یہ ہمارا راز ہے۔ سونیا، کسی کو ہمارے کام کی حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن راز کب تک چھپ سکتے ہیں؟ ہمارے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ ماں نے میرے لیے کچھ کپڑے سلوا دیے تھے، اور
मैंने देखा कि उन कपड़ों ने पूरे खानदान की नजरें हम पर जमा दी थी। इस बड़े घर के जितने पोर्शन थे सब में हमारे घर उनके खानदान थे। उन सबके घरों में फ्रिज थी, लेकिन जब भी मैं उनसे बर्फ मांगने जाती मुझे साफ मना कर दिया जाता। ये तल्ख रवैया हमेशा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता था। लेकिन फिर एक दिन माँ ने अपनी जमा पूंजी से एक फ्रिज खरीदा। मुझे वो दिन आज भी याद है जब माँ ने कहा कि अब हम भी ठंडा पानी पियेंगे, अब हमें किसी से बर्फ मांगने की जरूरत नहीं। उस दिन हमारी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी खुशी का इजाफा हुआ। अब घर में और भी जरूरी अशिया आने लगी। एयर कूलर, किचन के सामान और दीगर चीजें जो पहले ख्वाब लगती थी अब हकीकत बनने लगे। माँ ने बेड भी खरीद दिया ताकि वो और सोनिया जमीन पर न सोए। मैं अब भी वो दिन याद करती हूँ जब बेड आया था और हम दोनों ने उसे देखकर एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमें मिल गई हो। लेकिन इन सब चीजों के आते ही मोहल्ले और खानदान वालों की बातें भी बढ़ने लगी। मैं अक्सर माँ के पास जाकर शिकायत करती कि लोग हमसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कोई और काम तो नहीं करती, क्या तुम लोग अचानक इतने खुशहाल कैसे हो गए? ये सवालात मुझे अंदर से तोड़ देते थे। एक दिन मैंने माँ से कहा कि माँ, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, वो हमेशा शक करेंगे। माँ ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि बेटा इन बातों का जवाब ही न दिया करो, हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। माँ ने हमेशा मुझे हौसला दिया, लेकिन इन बातों का असर तो हमारी जिंदगी पर पड़ता था। जब आपके अपने ही सवाल उठाएं और आपके किरदार पर उंगलियां उठाएं तो ये बात आसान नहीं होती। लेकिन माँ के हौसले ने मुझे हमेशा मजबूत बनाया। लेकिन साथ ही एक फख्र भी था। मेरी माँ ने जिंदगी की मुश्किल तरीन दिनों में भी हार नहीं मानी। उसने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, यह हमेशा इज्जत का रास्ता होता है। एक हकीकत तो ये है कि लोग हमेशा बातें करते हैं, चाहे आप कुछ भी करें या ना करें। ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप उसके पास कुछ ना हो तो लोग आप पर रहम जताते हैं और बातें करते हैं, और अगर आपके हालात बेहतर होने लगे तो भी सवाल उठाते हैं। मैंने ये बात बहुत छोटी उम्र में समझ ली थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे खुद अपनी माँ पर शक होने लगा। एक दिन मैंने अपनी माँ को अलमारी में कुछ रखते हुए देखा। उनके हाथ में पैसों का एक बड़ा गुच्छा था, इतना बड़ा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। मेरी तो हैरत का कोई ठिकाना ही ना था। मैंने उनसे फौरन पूछा, ये क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लेकिन माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए झूठ बोला, कुछ खास नहीं। उनके लहजे में अजीब सी सख्ती थी। और मैं उनसे मजीद सवाल ना कर सकी, लेकिन मेरी बेचैनी कम ना हुई। मौका देकर जब माँ किसी काम से बाहर गई, मैंने अलमारी का वो हिस्सा खोला जहां उन्होंने वो पैसे रखे थे। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां वाकई वही पैसे पड़े थे। साफ और गिनती के लिए लगने लगा। वहां वाकई वही पैसे पड़े थे, साफ और गिनती के लिए तैयार। मैं हैरत ज़दा हो गई और मेरे जहन में सवाल उठने लगे कि ये पैसे कहाँ से आए? एक मैयत को गुस्ल देने के लिए कोई इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? मेरे दिमाग में ख्यालात की एक जंग छिड़ गई। लोग तो खुशियों में पैसे देते हैं, गम के मौका पर नहीं। तो फिर माँ को ये पैसे किस खुशी में दिए गए? क्या वो कुछ और कर रही हैं जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं? मेरे दिल में कई वसवसे उठे, लेकिन मैं उनसे पूछने की हिम्मत ना कर सकी। शाम को जब वो घर वापस आई तो उनके हाथ में एक नया मोबाइल फोन था। वो बड़ी खुशी से बोली, देख, मैं तेरे लिए फोन ले आई हूँ। तू कह रही थी ना कि बड़ा फोन चाहिए। मेरी उम्र उस वक्त ज्यादा न थी और उस उम्र में नए फोन या कीमती चीजों का शौक फितरी था। मैं उनकी खुशी में शामिल हो गई और उनसे वो सवाल पूछने की हिम्मत भी न की जो मेरे दिल में थे। उन पैसों को जिक्र मेरे जहन में दब गया, पर मेरा ध्यान उस नए फोन जीप से होते जा रहे थे। माँ ने मेरे जहेज की तैयारी शुरू कर दी थी और वो सोने के जेवरात खरीदने लगी। हर मैं हैरान थे कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो रहा है। सोना तो सब बहुत महंगा था। हर माँ के काम से इतने पैसे आना मुमकिन नहीं था। उनकी आमदनी कभी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एक साथ इतनी बड़ी खरीदारी कर सके। माँ ज्यादातर घर पर ही रहती थी। जब किसी मैयत को गुस्ल देना होता तो कोई उन्हें लेने आता और वो चली जाती। वह दिन बाहर गुजरता और शाम को वापस आकर अपनी मामूल की जिंदगी में मशगूल हो जाती। लेकिन उन दिनों जब वो बाहर जाती थी, मुझे अजीब सा शक होने लगा। कुछ तो था जो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन
मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे सवाल करूं। मेरे दिल में ये खौफ भी था कि अगर उन्होंने कह दिया जो भी कमा रही हूं तुझे ही खिला रही हूं, तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी। उनकी मेहनत और कुर्बानियों को देखकर मैं खामोश हो जाती थी। उनके लिए ये सब कुछ शायद बहुत मामूली था, लेकिन मेरे रवैये में तब्दीली एक मुअम्मा बन चुकी थी। एक और दिन ऐसा आया जब उन्होंने मेरे लिए एक नया ड्रेस खरीदा जो बहुत महंगा और खूबसूरत था। मैंने ड्रेस देखा तो मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन मेरे अंदर एक खलिश ने सर उठाया। वो खलिश जो हर बार नए तोहफे या कीमती चीज के साथ बढ़ती जा रही थी। मैं सोचती कि माँ के पास ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, वो क्या कर रही हैं जो उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई है। माँ के बारे में सवालात मेरे दिल में हर गुजरते दिन के साथ गहरे होते जा रहे थे। क्या वो किसी और काम में मुलव्वस है, कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपा रही है। लेकिन फिर मैं सोचती कि अगर ऐसा है भी तो वो ये सब कुछ मेरे लिए ही कर रही है। मेरे लिए वो इतनी कुर्बानियां दे रही हैं, तो क्या मुझे उनसे सवाल करने का हक है। ये सोचकर मैं खुद को खामोश रहने पर मजबूर करती थी। मेरी माँ के रवैये और उनके राज़ों ने मेरे जहन में हलचल मचा दी, लेकिन मैं उनकी मोहब्बत और कुर्बानियों की वजह से उनके बारे में कोई बुरा गुमान नहीं रखना चाहती थी। उनकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने खुद को उनके फैसला और रवैये को समझने की कोशिश में मसरूफ कर लिया, लेकिन ये सवालात मेरे अंदर एक तूफान की तरह मौजूद थे, जो कभी कभी मुझे चैन से सोने भी न देते थे। उनके पैसों का राज, उनके रवैये की तब्दीली और उनके साथ जुड़े सवालात मेरे लिए एक ऐसी पहेली बन चुके थे जिसका जवाब तलाश करना मेरे बस में न था। जब मेरी माँ ने कहा कि हम उम्र पर जा रहे हैं, तो मुझे एक लम्हे के लिए यकीन न आया। ये बात मेरे लिए हैरानकुन थी, क्योंकि उम्रा हमेशा से एक ऐसी सादत थी जिसका हसूल हर मुसलमान का ख्वाब होता है। लेकिन मेरे जहन में सवालात का तूफान था। मैंने माँ से पूछा कि उम्रे पर जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। माँ ने हमेशा की तरह सादगी से जवाब दिया, मैं काफी अरसे से पैसे जमा कर। ये जवाब मेरे लिए मुतमिन करने वाला न था। मेरे दिल में अजीब सा शुबा पैदा हो गया। मैं जानती थी कि 6 या 7 साल का अरसा गुजारा था जब माँ ने ये काम शुरू किया था। हर इन सालों में ना सिर्फ वो घर की रोजमर्रा जरूरियात पूरी कर रही थी, बल्कि उन्होंने घर के सामान, मेरा जहेज और दीगर महंगी अशिया पर भी बेतहाशा खर्च किया था। इन तमाम अखराजात के बावजूद इतनी बचत कैसे मुमकिन थी। जब मैंने दोबारा माँ से सवाल करने की कोशिश की तो वो कुछ चिड़चिड़ी हो गई। कहने लगी कि ये सब बातें छोड़ो और हमें बुलावा आया है, पर हमें इस आदत को हासिल करने की तैयारी करनी चाहिए। उनके लहजे में एक ऐसा यकीन था कि मैं मजीद बहस करने की हिम्मत ना कर सकी। मैंने सोचा कि जो भी हो मुझे अपनी माँ पर भरोसा करना चाहिए। खानदान वालों को जब पता चला कि हम उम्र के लिए जा रहे हैं, तो जैसे उनके मुंह खुल गए। एक के बाद एक सवाल शुरू हो गए। उनके पास इतने पैसों से जा रहे हैं, कहीं ये किसी गलत काम से तो नहीं कमा रहे। इन सवालात के तीर हमें हर तरफ से आकर लग रहे थे। माँ ने उन सब सवालों का सामना बड़ी बेखौफी से किया। उन्होंने इन सबको सख्ती से जवाब दिया और कि हम मेहनत से कमा रहे हैं और जहां हम जा रहे हैं वहां बड़े नसीबों वाले लोग जाते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे होने के बावजूद तुम्हें तौफीक नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर। माँ के ये अल्फाज सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद हमें इतने बड़े दावे नहीं करने चाहिए थे, खास तौर पर ऐसे मौका पर जब हम अल्लाह के घर जा रहे थे। लेकिन माँ के एतमाद ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा कि वो बड़ी हैं और उन्हें ज्यादा समझ है। जिस दिन हम रवाना हुए, मेरे दिल में खुशी और तजस्सुस दोनों थे। मैंने कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। हर पहली मर्तबा न सिर्फ किसी और जगह जा रही थी, बल्कि वो जगह खाना काबा थी, जहां हर मुसलमान का दिल जाने के लिए तड़पता है। ये सोचकर मेरा दिल सुकून और खुशी से भर गया। जब हम हवाई जहाज में बैठे तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू शुक्र के थे, खुशी के थे और शायद थोड़े से खौफ के भी कि क्या मैं वाकई इस लायक हूं कि अल्लाह के घर जा सकूं। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह की रहमत से सब मुमकिन है, दुआ करो कि सब अच्छा हो। उनके अल्फाज में एक अजीब सी ताकत थी जिसने मेरा दिल मुतमईन कर दिया।
जब हम मक्का पहुंचे और पहली बार खाना काबा को देखा तो मेरे दिल की कैफियत बयान करना मुश्किल है। वो मंजर ऐसा था जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती वहां से मैं गायब हूँ। खाना काबा के सामने खड़े होकर मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, एक ऐसी दुनिया जो सुकून, मोहब्बत और ईमान से भरी हुई थी। माँ ने मुझे बताया कि यहाँ आकर हमें अपनी सारी परेशानियां, गम और दिल के बोझ अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ दुआ कबूल होती है, यहाँ दिलों को सुकून मिलता है, हर वक्त दुआ कबूल होती है, यहाँ दिलों को सुकून मिलता है। हर वाकई वो लम्हे मेरे लिए जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। हम इबादत में मसरूफ हो गए और माँ ने मुझे सिखाया कि कैसे तवाफ करना है, कैसे दुआ करनी है और किस तरह दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारना है। हर लम्हा मेरे दिल को सुकून देता था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचने की तौफीक दी। लेकिन इबादत के उन पुरसुकून लम्हात के बावजूद मेरे दिल के एक कोने में सवालात अब भी मौजूद थे। माँ की बचत की कहानी पर मेरा यकीन मुकम्मल ना था। मैं सोचती रही कि आखिर माँ ने इतनी बड़ी रकम कैसे जमा की? क्या वो वाकई किसी और काम में मुलव्वस है जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं? लेकिन उन ख्यालात को मैंने छटक दिया क्योंकि मैं जानती थी कि ये वक्त इबादत और अल्लाह से कुर्बत का था, न कि शक और सवालात का। माँ के साथ ये सफ़र ना सिर्फ रूहानी था बल्कि मेरे लिए एक जज्बाती सफ़र भी था। उनके साथ गुजारे गए वो लम्हात वे जैसा ही पुरसुकून और खूबसूरत था। हम इबादत में मसरूफ थे और दिल सुकून और शुक्र के जज्बात से लबरेज था। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने ऐसी बात की जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। हम दोनों हरम में एक साथ बैठे थे और दुआ कर रहे थे और वहां मौजूद लोगों के दरमियान एक रूहानी सुकून का माहौल था। अचानक माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे दुआ करनी है, तू जरा यहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली जा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा कि माँ, दुआ तो आप मेरे सामने भी कर सकती हैं, इसमें छुपाने की क्या बात है? लेकिन माँ की नजरें अजीब सी थी। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी और उलझन के आसार थे। उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं, मुझे अकेले दुआ करनी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ अल्लाह को बतानी है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी बातें न सुने, हत्ता कि तुम भी नहीं। माँ के लहजे में कैसी संजीदगी और सख्ती थी कि मैं मजीद बहस न कर सकी। मेरे दिल में सवालात थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात जो वो सिर्फ अल्लाह को बताना चाहती थी। लेकिन मैं उठकर वहां से चली गई। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे कि क्या माँ को किसी बात का खौफ था या वो किसी गुनाह की माफ़ी मांगना चाहती थी। लेकिन मैं उन सवालात के जवाब नहीं जानती थी। जब मैं कुछ फासले पर जाकर बैठ गई तो दूर से माँ को देखती रही। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा कि शायद माँ वाकई अपनी जिंदगी के किसी बड़े बोझ को अल्लाह के सामने रख रही है। उनके आंसू देखकर मेरा दिल भी भर आया और मैंने अल्लाह से दुआ की कि माँ के दिल की तमाम बातें सुन ले और उनके दिल को सुकून दे। कुछ देर बाद माँ ने दूर से मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। मैं वापस उनके पास गई तो उनकी आंखें अब भी नम थी। मैंने उनके करीब बैठते हुए पूछा कि माँ, सब ठीक है? आपकी दुआ मुकम्मल हो गई? उन्होंने सर हिलाया और कहा कि हाँ, हो गई। लेकिन उनके लहजे में अजीब सी थकन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हों। फिर उनके लहजे में अजीब सी थकन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हों। फिर अचानक उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हम इस जगह पर नहीं रहेंगे जहाँ अभी रह रहे हैं। ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? हमारा घर तो वही है। फिर ये फैसला कैसे कर लिया आपने? माँ ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा पर कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है कि हमें एक नई जिंदगी दे, एक नया आगाज। उस जगह पर रहना मुमकिन नहीं रहा। माँ के अल्फाज मेरे लिए बेहद परेशान कुन थे। मैंने पूछा, पर वो जगह छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हर वो घर तो हमारा हक है, हम अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकते हैं? माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि वो लोग हमें हमारा हिस्सा नहीं देंगे। ये बात मैं दिल में जानती हूँ। वहां रहने का कोई फायदा नहीं, चाहे इज्जत ना हो और हक ना मिले। माँ के चेहरे पर बेबसी का साया था। उन्होंने मजीद कहा कि हिस्सा तो हमें वैसे भी नहीं मिलेगा और वो लोग हमें कुछ नहीं देंगे, बुरे से दूर हो जाए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, पर माँ, फिर हम कहाँ जाएंगे और आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने नरमी से मेरा हाथ पकड़ा पर कहा कि मैं तेरे लिए एक अच्छे इंसान की तलाश करूंगी, तेरी शादी करवाऊंगी और उसके बाद
तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं भी कुछ न कुछ कर लूँगी। अल्लाह है ना, वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। माँ की बातों ने मेरे दिल में बेशुमार सवालात पैदा कर दिए। उनकी आंखों में जो उदासी थी, उसने मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया। आखिर माँ ने सबका फैसला अचानक क्यों किया? घर में तो कभी ऐसी बात नहीं की थी। क्या वो किसी परेशानी से दो चार थी, या उन्हें किसी चीज का अंदाजा हो गया था जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी? माँ के अल्फाज बार बार मेरे जहन में गूंज रहे थे। हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, और उनकी ये बातें मेरे लिए समझना मुश्किल थी। क्या वो वाकई हकीकत जानती थी, या ये उनके दिल का वहम था? जिसकी सच्चाई और उनकी आंखों के आंसू ये बता रहे थे कि वो किसी गहरे गम में मुब्तला है। माँ ने उस दिन मुझसे कहा कि बेटी कुछ चीजें वक्त के साथ समझ आती हैं, और कभी कभी इंसान को खुद को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने फैसला कर लिया है कि हमें इस जगह से दूर जाना है। बस अल्लाह पर यकीन रख, वो बेहतर करेगा। ये अल्फाज सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ के चेहरे पर एक मजबूती थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेबसी भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात वाज़ेह थी, वो एक नए रास्ते की तरफ बढ़ने का इरादा कर चुकी थी। अगली सुबह फजर के वक्त हम लोग हस्बे मामूल हरम में मौजूद थे, और माँ ने सुबह से ही तबीयत की खराबी की शिकायत की, लेकिन उनका इसरार था कि हमें इबादत के लिए जाना है। तो कह रही थी कि शायद ही मौका दोबारा न मिले, इसलिए जितना वक्त है उसे कीमती बनाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि वो आराम करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। के बारे में मेरे दिल में कुछ खदशात थे, लेकिन मैं उन्हें रोकने की हिम्मत ना कर सकी। माँ पूरे रास्ते थकी थकी लग रही थी। उन्होंने चंद कदम चलने के बाद रुककर सांस लिया और कहा कि बेटी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। अल्लाह हमें देख रहा है, और वही हमारी दुआएं कबूल करेगा। मैंने उनकी बात सुनी और खामोशी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया। हरम में पहुंचकर हमने इबादत शुरू की, और मैं दुआ में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि माँ बैठते ही कुछ देर के लिए आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगी। फिर अचानक उनका चेहरा जर्द पड़ गया और वो एक तरफ गिर गई। मेरी चीख निकली कि अम्मी। मैंने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हमारी तरफ मतवज्जो हुए और कुछ मदद के लिए आगे बढ़े, और उसी दौरान चंद अफराद जो शायद कार्ड्स थे वहां पहुंच गए। मैंने सोचा कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक इशारा करते हुए कहा, ये औरत हम इसे तलाश कर रहे थे। मैं हैरान रह गई कि क्या मतलब, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सवाल किया, लेकिन वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए माँ की तरफ इशारा करने लगे। उनमें से एक ने कहा कि यह औरत बहुत बुरी है, इसने ऐसे गुनाह किए हैं जिनकी सजा दी जाएगी। उनके अल्फाज सुनकर मेरा दिल दहल गया। आप लोग क्या कह रहे हैं? ये मेरी माँ है और वो एक नेक औरत है, हमेशा इबादत में मसरूफ रहती है, और आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी आवाज़ कपकपा रही थी और आंखों में आंसू थे, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर किसी किस्म की हमदर्दी का शायबा तक ना था। उन्होंने दोबारा कहा कि हम इसे इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देंगे, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। उनकी बातों में एक अजीब सी सख्ती और गुस्सा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस हरकत या किस गुनाह की बात कर रहे थे। मेरे लिए किसी भयानक ख्वाब से कम ना था, और उसी दौरान एक और गार्ड ने कहा कि औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर कि औरत अब इस दुनिया में नहीं रही, ये सुनकर मेरे कदम जमीन में धंस गए। क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं माँ की तरफ झुकी और उनका चेहरा देखा, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। उनकी रूह जैसे उनके जिस्म से निकल चुकी थी, और मेरी दुनिया लम्हों में बिखर गई। मेरी माँ जो चंद लम्हे पहले मेरे साथ थी, अब इस दुनिया में न रही थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उन लोगों की बातों ने मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। वो कह रहे थे कि ये औरत अपने गुनाहों की बाइस सजा की मुस्तहिक है। हमें हुक्म मिला है कि उसे इबरत का निशान बनाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। उनके अल्फाज मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था जो वो इस तरह की बातें कर रहे थे। मैंने अपने हवास मजतमा करने की कोशिश की और रोते रोते कहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी माँ ने क्या गुनाह किया है? वो तो एक नेक औरत है, और वो तो दूसरा है। वो तो एक नेक औरत थी, और वो तो दूसरों की मदद करती थी।
मुर्दों को उसल देती थी और लोगों की खिदमत करती थी। आप लोग उन्हें बुरा कैसे कह सकते हैं? लेकिन उनमें से एक शख्स ने मुझे सख्त नजरों से देखा और कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ का असल चेहरा क्या था? वो एक काम की आड़ में गुनाह कर रही थी। हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम है। वो अल्लाह के कानून के खिलाफ वर्जी कर रही थी और आज उनका हिसाब चुका दिया गया है। मेरी आंखें हैरत और खौफ से फटने लगी। ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद से सवाल किया और उनके अल्फाज मेरी समझ से बालातर थे। मेरी माँ ने हमेशा यही बताया कि वो मेहनत से कमा रही है, लेकिन ये लोग जिन गुनाहों की बात कर रहे थे वो क्या थे? मेरा दिल किसी बदतरीन खदशे से लरस रहा था। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और इल्तिजा की कि खुदा के लिए मुझे बताएं कि मेरी माँ ने किया क्या है। मैं उनकी बेटी हूं और मुझे हक है कि मैं जानूं। एक और शख्स आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला कि तुम्हारी माँ मुर्दों को गुस्ल देने के बहाने ऐसे कामों में मुलविस रही जो शरीयत के खिलाफ है। वह नाजायज पैसे कमाती रही और अल्लाह ने उसके गुनाहों को पर्दाफाश कर दिया। वो कहने लगी कि जब तुम्हारी माँ मुर्दों को गुस्ल देती थी तो उनके मुंह में तावीज रख दिया करती थी। हर उस काम के लाखों रुपए लेती थी। उसने खुद ये बात कबूल की है क्योंकि जब वो रो रही थी और दुआ कर रही थी तो ये सब कुछ बोल रही थी और वहीं पर हमारा एक आदमी बैठा था। अगर ऐसे ऐसे गुनाहगार लोग आज और इन कामों से पैसे जमा करके हज उम्रे करने चले आए तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम लोग आसानी से होने देंगे। मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और मेरा दिल चाह रहा था कि ये सब कुछ झूठ हो, लेकिन उन लोगों के लहजे की सख्ती और यकीन मुझे झंझोड़ रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा कि अगर ये सच है तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको ये सब बताने के लिए भेजा गया है? उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहाँ इंसाफ के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ने हमें गवाह बनाया है और हुक्म दिया कि सजा दी जाए ताकि बाकी लोग इबरत हासिल करें। लेकिन अब तुम्हारी माँ दुनिया से जा चुकी है, इसलिए उनका हिसाब आखिर में होगा। ये सुनकर मेरा दिल किसी वजनी पत्थर की तरह डूब गया। मैं खामोशी से अपनी माँ की बेजान लाश की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये लम्हा मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश था। मेरी माँ जिन्हें मैं नेक और पाकीज़ा समझती थी, उन पर ऐसे इल्जामात, मेरा दिल इस हकीकत को कबूल करने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो लोग वापस चले गए। जाते वक्त उनमें से एक शख्स ने मुझसे कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी माँ के लिए दुआ करो और अपने लिए एक नई राह तलाश करो। अल्लाह रहम करने वाला है, वो तुम्हें सीधे रास्ते पर रखे। उनके जाने के बाद मैं वहीं जमीन पर गिर गई। बेबसी और दुख के आलम में मेरी दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। न मेरी माँ रही, न उनके बारे में वो भरोसा जो मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा किया। उनकी मौत के साथ मेरी जिंदगी भी जैसे एक अंधेरी गली में दाखिल हो चुकी थी कि कोशिश की, लेकिन मेरे जहन में अब भी बेशुमार सवालात थे। क्या ये सब सच था? क्या वाकई मेरी माँ ने कोई गलत काम किया था या ये महज एक गलत फहमी थी? हरम की मुकद्दस फिजा में बैठे हुए मैंने अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, या अल्लाह मेरी माँ को माफ़ फरमा। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन पर रहम कर और उन्हें अपनी रहमत के साए में रख। मेरे आंसू दुआ के साथ बह रहे थे। मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मेरी माँ जहाँ भी हो सकून में हो, पर उन लोगों ने मेरी बात ना मानी और वो जो करने पे कादिर थे उन्होंने कर दिया। वहीं पर एक आदमी बैठा था और वो भी पाकिस्तान से आया था। उसने कहा कि बेटी, कौन है जो मुर्दों को गुस्ल देने के लिए लाखों रुपए देता है? ज्यादा से ज्यादा 5,000 होते हैं और इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं देता। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी माँ को ये काम करते हुए कितना वक्त हुआ था? मैंने कहा कि 1 साल भी नहीं हुआ। तो कहने लगा कि फिर 1 साल में कितनी औरतें मर गई होंगी, और अगर सबने 1,000 भी दिया हो तो कितने पर भी दिया हो तो कितने पैसे बनते हैं? मैंने कहा कि मैंने ये सब कुछ कभी सोचा ही नहीं। वापसी का सफर एक गहरी खामोशी में कटा। मेरी माँ के बगैर वो लम्हे किसी बेमकसद रास्ते की मान थे जहाँ मंजिल का कोई सुराग ना था। मैं अपनी माँ की मैयत के साथ एक जिम्मेदारी के एहसास में डूबी हुई थी और उनके बगैर जिंदगी का तस्वुर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। एयरपोर्ट पर मेरे चेहरे की हालत देखकर कोई भी ज्यादा सवाल करने की जरूरत न कर सका। मैंने जल्दी जल्दी तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और अपनी माँ की तदफीन के इंतजामात में लग गए। घर पहुंचते ही वही लोग जो हमेशा बातें करते थे हमारे घर में अफसोस के लिए आने लगे। उनके चेहरे पर सवालात तो थे, लेकिन फिलहाल सब खामोश थे। मैंने जल्दी जल्दी तमाम इंतजामात मुकम्मल किए। मेरी माँ की तदफीन सादगी से हुई।
लोगों ने जो हमदर्दी जताई वो मेरे दिल में बोझ को जरा भी कम ना कर सकी। उनकी दुआएं सुनकर मेरा दिल एक लम्हे को सुकून महसूस करता, लेकिन फौरन ही वो तमाम सवालात जो मेरे दिल में गूंज रहे थे मुझे दोबारा बेचैन कर देते। जब किसी ने मुझसे उनकी अचानक मौत की वजह पूछी तो मैंने झूठ बोला, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। ये झूठ मेरी जुबान से ऐसे निकला जैसे कोई जख्म छुपाने के लिए कपड़ा लपेटता है। मैं जानती थी कि अगर मैंने असल वाकया बयान किया तो मेरी माँ की इज्जत खाक में मिल जाएगी और उनकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बल्कि लोग तो ये कहने लगे कि नेक औरत थी जो वहां पर जाकर मरना नसीब हुआ। जैसे जैसे दिन गुजरते गए लोगों की बातें कम होती गई, लेकिन मेरे दिल में वो सवाल जिंदा थे जिनका जवाब ना मुझे मिला और ना ही शायद कभी मिलेगा। मैं सोचती रहती कि क्या मेरी माँ ने वाकई कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा उन्होंने दुनिया में ही भुगत ली, या ये सब महज एक गलतफहमी थी। उन ख्यालात ने मुझे बेचैन कर रखा था और मैंने फैसला किया कि मैं किसी को इन वाक़यात के बारे में नहीं बताऊंगी। वहाँ जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे और अल्लाह के दरमियान एक राज था। मेरी माँ की इज्जत और उनके नाम मेरे लिए सबसे अहम था, और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी मौत के बाद उन पर कोई उंगली उठाए। दिनों, हफ्तों और महीनों में वो यादें मेरे दिल में खुलती रही। मैंने अपनी माँ के लिए दुआ करना अपना मामूल बना लिया और हर दुआ में मैं अल्लाह से यही कहती कि या अल्लाह, अगर मेरी माँ ने कोई गलती की हो तो उन्हें माफ़ फरमा, उनके गुनाहों को अपनी रहमत के साए में छुपा ले। ये दुआ करते वक्त मेरे आंसू बहते रहे, लेकिन ये आंसू मेरे दिल के बोझ को कुछ हल्का कर देते थे। जिंदगी की हकीकतों ने मुझे एक बात सिखा दी, कुछ सवालात के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ वो मेरे लिए एक ऐसी कहानी बन चुका था जिसका इख्तिताम मुझे कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन उनके लिए मेरी मोहब्बत और दुआएं कभी खत्म नहीं होंगी। मैं ये जानती थी कि मेरी माँ ने जो कुछ भी किया वो मेरी बेहतरी के लिए था। वो हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचती थी और शायद इसीलिए उसने वो सब कुछ छुपाया जो उसकी जिंदगी का हिस्सा था। मैं जानती थी कि उसके पीछे कुछ न कुछ राज थे, लेकिन मेरे दिल में ये सोच भी थी कि शायद ये सब कुछ मेरी ही भलाई के लिए था। जब मेरी माँ ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था तो वो मेरी जिंदगी का एक मोड़ था। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह से दूर हो जाऊं, नई जिंदगी शुरू करूं, और मुझे ऐसे लगा कि उसकी ये ख्वाहिश उसके दिल की गहराइयों से निकली हुई थी और उसे पूरा करने का फैसला मैंने किया। मेरी जिंदगी में पहले ही एक शख्स था जिससे मैं मोहब्बत करती थी, पर मैंने उसे बताने का फैसला किया कि मेरी जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। जब मैंने उसे बताया कि मेरी माँ अब नहीं रही और मैं अकेली हो गई हूँ तो वो फौरन मेरे पास आया। उसकी आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों थे, और उसने बगैर किसी ताखीर के मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने की बात की। उसने अपना नाम दिया और मेरे हाथ ने अपने हाथ का वादा थाम लिया। ये वो लम्हा था जब मेरी जिंदगी में सुकून का पहला एहसास आया। मैं शख्स के साथ मेरी नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। मेरे लिए उस वक्त सब कुछ बदल चुका था। मेरी माँ की सब बनाई हुई चीजें, उसका दिया हुआ हर तोहफा, मैं सब कुछ साथ लेकर जाना चाहती थी। मुझे ऐसे लगा मेरी माँ की मोहब्बत का हर निशान मुझे साथ रखना चाहिए, क्योंकि उसका दिया हुआ सामान सिर्फ चीजें नहीं थी बल्कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। मेरी माँ की दुआएं और मोहब्बत भी इनमें शामिल थी। फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे हर हाल में इस सब को साथ ले जाना है। हर मैं दूसरी शहर मुंतकिल हो गई। मेरे शौहर इमरान के साथ मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जब मैंने इमरान से अपनी माँ की मौत के बारे में बताया तो वो भी यही कहता था कि वहां पर नसीबों वाले लोग मरते हैं, और मेरी माँ वाकई बहुत अच्छी थी। वो कहता कि मेरी माँ ने जो कुछ भी किया वो बहुत सोच समझ कर किया था और उसके पीछे मोहब्बत थी। लेकिन मैं अपने दिल में ये राज रखने में ज्यादा देर नहीं रह सकी, पर मैंने फैसला किया कि मैं इसे दुनिया से छिपाऊंगी। मेरी माँ ज्यादा देर नहीं रह सकी, पर मैंने फैसला किया कि मैं इसे दुनिया से छिपाऊंगी। मेरी माँ की हकीकत को बताकर मैं उसकी इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी माँ के लिए जो कुछ भी था वो उसकी मोहब्बत थी। हर मैं उस राज को सीने में दबाए रखना चाहती थी ताकि उसकी इज्जत बरकरार रहे। अब मैं यहाँ नई जिंदगी गुजार रही हूँ और अपने शौहर इमरान के साथ मेरी कहानी एक नए बाब में दाखिल हो चुकी थी। लेकिन वो सब कुछ जो मेरी माँ ने किया वो हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। मेरी माँ की मोहब्बत और उसकी कुर्बानियां कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं इस राज का बोझ लेकर अपने नए आगाज के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, और यही मेरी कहानी है जिसे मैंने दिल की गहराइयों से सुनाया।
یہ سب کچھ دراصل جادو کے سلسلے میں ہوتا ہے اور بہت سے ایسے عامل ہیں جو اس طرح کے گھٹیا جادو کرتے ہیں جس میں مردے کے منہ میں تعویذ چھپایا جاتا ہے، اور یہ کام غسل دینے والوں سے زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے؟ میری ماں کے ساتھ مل کر جو شخص یہ کام کرتا تھا وہ بھی برابر کا گناہ گار تھا، لیکن وہ کون تھا اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ اس نے ضرور میری ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہوگا، اس کو اس کام پر راضی کیا ہوگا کہ اگر تم یہ کرو تو بہت سے پیسے ملیں گے، اور ظاہر ہے ایسے لوگ اپنے شرک کا فائدہ اٹھا کر دوسروں سے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ تو پھر میری ماں کو بھی بہت سارے پیسے دیا کرتا تھا۔ اب بھی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ اس کا بھی انصاف کرے، جو بھی وہ تھا اس نے کس طرح میری ماں کی زندگی تباہ کی۔ اللہ اس کے ساتھ سچ کا حساب لے گا، اور اس کام میں میری ماں کا قصور تھا، لیکن اس شخص کا بھی برابر کا قصور تھا۔ میں اب اپنی ماں کی حقیقت نہیں بتا سکی، مگر جو ہوا وہ اب میری زندگی کا حصہ ہے، اور میں اپنے دل کی باتوں کو بیان کر رہی ہوں تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نہ چھپے رہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا۔ کبھی کبھار میں اپنی ماں کی قبر پر آتی تھی، لیکن وہ بھی بہت کم، سال یا 2 سال بعد، اور اب کافی پرانی ہو چکی ہے۔ اس وقت کے واقعات بھی دھندلے ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات ابھی تک مجھے حیران کرتی ہے، میری ماں کو ہوا کیا تھا؟ بیٹھے بیٹھے وہ اس دنیا سے کیسے چلی گئی؟ جب وہ مجھے سائٹ پر بھیج کر کہہ رہی تھی کہ مجھے دعا کرنی ہے، تو کیا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی؟ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ وہ سب کچھ نہیں بولنا چاہتے تھے جو وہ اندر سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھی وہ ہمیشہ میری حفاظت کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب تک اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تب تک اس کی زندگی کے گہرے راز سامنے آ چکے تھے۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سب کچھ اس دوسرے آدمی نے سن لیا تھا، اور پھر ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ راز وہی تھا جسے میری ماں نے ہمیشہ چھپایا، ہر وہ اپنے آخری وقت میں چاہتی تھی کہ میں اس سے سوال نہ کروں۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ اس کا بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گی۔ وہ وقت اور وہ لمحے میرے ذہن میں اب بھی زندہ ہے، اور شاید وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہی تھی، لیکن جب تک وہ خود کو معاف نہیں کر پائی اس راز کا بوجھ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ آج بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ شاید وہ آخری وقت میں خود کو اپنے اعمال سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شاید میں کبھی نہ جان سکوں کہ وہ سچ میں کیا چاہتی تھی۔ لیکن ایک بات ہے، جب میری بیٹی فریدہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام فریدہ رکھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرح اپنی بیٹی کو محبت دی اور اس کی زندگی میں وہ سب کچھ دیا جو میری ماں نے میری زندگی میں دیا تھا۔ ایک طرح سے فریدہ میری ماں کی محبت کی عکاسی بن گئی۔ اب اس کے ساتھ جتنی محبت اور سکون مجھے ملتا، وہ میری ماں کی غیر موجودگی کو کسی حد تک بھر دیتا ہے۔ ہر اس کے وجود سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماں کی روح میری زندگی میں ہمیشہ موجود ہے۔ جادو ٹونا ایک ایسا شیطانی عمل ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں تباہی اور بربادی لانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالت کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کی رشتہ داریوں کو بھی ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ جادو کا استعمال کرنے والے لوگوں کی نیت ہمیشہ بری ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف رسد میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہتا، اور جو اس کا شکار ہوتا ہے اس کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے جو اس شیطانی عمل کو کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعویذ، منتر اور عملیات کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گندے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ گناہ انسانوں کی تقدیر سے کھیلتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی دوسرے کی بدبختی میں خوشی چھپی ہوتی ہے، اور یہی ان کی بدترین فطرت ہے۔ جب جادو ٹونا کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ صرف معمولی بات نہیں، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں گھمبیر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جادوگر اکثر کسی فریاد یا خاندان کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ ان کے مقصد میں اکثر مالی فائدہ، محبت کے رشتے میں خلل ڈالنا یا کسی کو جسمانی یا ذہنی طور پر تکلیف پہنچانا شامل ہوتا ہے۔ جادو کے اثرات صرف انسانوں کی اور روح پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص جادو کے اثر میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں مایوسی، بیماری اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی اندرونی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کی حالت اتنی بدتر ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو بالکل تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس کا اثر اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر پڑتا ہے۔ جادوگر اس کے ذہن میں شک اور بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں اور اس کے رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں۔ آپس میں
मोहब्बत और एतमाद की कमी हो जाती है और ऐसे खानदानों में अक्सर झगड़े और बदगुमानियां बढ़ जाती हैं। जादू के असरात की वजह से खानदान का सुकून बर्बाद हो जाता है और हर रोज एक नया बहरान जन्म लेता है। जादू टूना करने वाले अपने कामों को मुकम्मल तौर पर छुपाते हैं और किसी को उनके बारे में शक भी नहीं होने देते, मगर उसके बाद जो तबाही आती है वो सबके सामने होती है। एक और अहम बात यह कि जादू टूना करने वाले अफराद अपनी शैतानी मकासद को पूरा करने के लिए ना सिर्फ तावीज़ और मंत्र इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो अफराद की कमजोरी और मजबूरियों को फ़ायदा भी उठाते हैं। उनके लिए ये तजारत की तरह है जिसमें वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और इसमें इंसानों की तकदीरों को बर्बाद करना एक मामूली बात बन जाती है। उसके बावजूद कि जादू और टूना का असर इंसानी जिंदगी पर इंतहाई मनफी होता है, बहुत से लोग इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं करते या उसे महज एक अफसाना समझते हैं, मगर जिन लोगों ने इसका तजुर्बा किया है वो इसके असरात को बखूबी समझते हैं। जादू करने वाले जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं उतनी ही बड़ी बदबख्ती उनकी जिंदगी में आती है। उनका मकसद कभी भी किसी की भलाई नहीं होता और ये हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक जादू टूना करने वाले लोग इंतहाई गैर इखलाकी और बर्बाद करने वाले होते हैं। उनका अमल किसी भी सूरत में दुरुस्त करने वाले होते हैं। उनका अमल किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं हो सकता और उनकी सज़ा सिर्फ अल्लाह की अदालत में ही मिल सकती है। जादू से बचने के लिए हमें अपने ईमान को मजबूत बनाना चाहिए और अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। हमें अपने रब से हमेशा दुआएं करनी चाहिए और अपने दिलों में यकीन रखना चाहिए कि वो हर बुराई से हमें बचाए रखेगा। इस बात का इतराफ़ करते हुए कि जादू टूना करने वालों का असर सिर्फ उनके बुरे कामों पर नहीं रहता, बल्कि उनका असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है। उनकी बदआमालियों से ना सिर्फ फर्द बल्कि पूरा ख़ानदान, गांव या शहर मुतासिर होता है। लिहाजा हमें उस शैतानी अमल का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।